Alright, Ji, next question. Thoughts on cinema etiquette in Karachi. Assalamualaikum, Junaid bhai. Hope you and your family are doing well. I want to share and discuss a trend I've observed during my recent visits to cinemas in Karachi. As a huge movie enthusiast, I've always loved watching films on the big screen. Cinemas used to be my safe space, a place to clear my mind and enjoy a good movie. However, after watching 10 movies this year in various cinemas across Karachi, I've noticed a consistent and troubling pattern. The audience behavior has been increasingly disruptive. Whenever there's a kissing or hugging scene, the entire crowd starts hooting and whistling, often continuing even after the scene has ended. And if you ask them to quiet down, you risk receiving death threats in response. In another incident during a completely different film, a man walked into the theater midway, stood in front of the screen, and shouted something in Pashto. Someone in the top row immediately shouted back, apparently discussing what popcorn and drinks to get. They were behaving as if they were in their own living room. Out of all movies I've watched this year at various times of day and night, not once was I able to enjoy a film in peace. People constantly record videos for Snapchat, talk loudly on phone calls, or chat with each other throughout the screening. It really feels like, as a society, we're losing basic manners and common decency. I'd love to hear your thoughts on this matter. Warm regards, an annoyed cinema buff. Interesting question. And as someone who enjoys watching movies, I can totally understand your pain. This indeed happens a lot. ये जो आपने बात की ना कि किसिंग सीन के दौरान हूटिंग कर रही है, अभी से नहीं है. This goes as far back as like 1995 when I used to go to Capri Cinema, Bambino. वहाँ पे आपको पता है ज़रा क्राउड डिफरेंट आता है. ये जो मल्टीप्लेक्सेस होते हैं ये महंगे होते हैं, यहाँ थोड़ा डिफरेंट क्राउड आता है. वहाँ तो बिल्कुल ही भाई 30 रुपए का टिकट फ्रंट रो. तो वहाँ तो ये हूटिंग मुझे आज भी याद है जब टाइटैनिक में खैर वो तो सीन उन्होंने काट दिया था. देयर वाज नो फ्रंटल न्यूडिटी वाला सीन. ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सिनेमाज में नहीं दिखाते न्यूडिटी, वो अलग सिनेमाज होते हैं सिर्फ बालिगान के लिए. विल कम टू दैट लेटर. बट ये चूंकि कपरी सिनेमा था तो उसमें वो सीन एडिटेड था. सो आपको याद होगा जब जैक रोज की पिक्चर ड्रॉ कर लेता है तो वो उसको कॉइन देती है, तो पीछे से किसी ने आवाज लगाई दिहाड़ी दिहाड़ी ले ले. सो या दिस यूज्ड टू हैपन ऑल द टाइम. किसिंग सीन पे लोग हूटिंग करते थे, ओए 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 छोड़ छोड़. फिर कोई पीछे से बोलता था सांस दे रहा है, इस तरह करके आवाजें लगाने वाली. ये तो चीजें रहती हैं. बट लाइक अगर आप एक सॉरी अब ये जैसे आपने बात की कि एक बंदा बीच में आके पीछे से शाउट करे, क्योंकि सिनेमास के अंदर आई बिलीव सिग्नल्स नहीं आते, एंड राइटफुली सो आने भी नहीं चाहिए. वो इसलिए क्योंकि भाई लोगों का एक्सपीरियंस डिस्टर्ब होता है. अब यहाँ पे जिम्मेदारी आती है सिनेमास की, आपकी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है आप कुछ बोलोगे तो अगला लड़ेगा. और पाकिस्तान में मैं तो कहता हूँ बंदा किसी को मुँह ना लगाए. बेहतर इसी में ये कि आप चुप सर नीवा करके आगे पीछे हो जाए. लेकिन आई अंडरस्टैंड कि आप people spend a lot, and not just spending in terms of money, टाइम लगा के गाड़ी निकाल के ट्रैफिक में फंस के पार्किंग लगा के क्यू में लग के टिकट लेना, फिर अलग क्यू में लग के पॉपकॉर्न लेना, 10,000 मसले मसाइल, एंड यू कांट रियली एंजॉय. देन यू एंड अप स्पेंडिंग लाइक 2,500-3,000 रुपये तो फी बंदा खर्च हो जाता है. और उस पर फिर जब इस तरह की हरकतें हों तो बड़ा बुरा लगता है. अच्छा एक चीज़ है, अब दिस इज माई प्रिविलेज स्पीकिंग, because I have the ability to do these experiences somewhere else. That is primarily the reason why I don't do these experiences back home. मैं कराची में सिनेमा कभी भी नहीं जाता. इनफैक्ट अपनी फिल्म देख के आधी फिल्म देख के उठ के आ गया था, मुझे समझ ही नहीं वाला ये क्या था. मेरे तो सिर्फ 4 सीन थे, मुझे पूरी स्टोरी लाइन का तो नहीं पता था. एनीवे, for more or less the same reason. First of all, there is not good variety of movies in Pakistan ever. कभी भी आपको कोई स्टोरी बेस्ड मूवी नहीं. स्टोरी, व्हेन आई से स्टोरी बेस्ड, आई मीन समथिंग दैट इज नॉट एक्शन, ड्रामा. आपको कोई ड्रामा मूवी कभी भी नहीं दिखेगी. इट्स ऑलवेज डिशुम डिशुम डिशुम. ये अब तो ये मार्वल डीसी भी आ गया है, यही होता है. एनिमे भी शुरू हो गया है अब, विच इज गुड. एटलीस्ट एनिमे को वो इज्जत मिल रही है जो उसको मिलनी चाहिए. बट डिशुम में हमने सारी जिंदगी देखा है, या तो जैकी चैन अकेला 800 बंदे मार रहा है, या फिर जो है वैन डैम जो है टांगे चीर के इसको मार रहा है उसको मार रहा है, हाथ से कोबरा को पकड़ रहा है, या फिर जो है
फेस ऑफ, ठीक है ना, ट्रावोल्टा का मुंह लगा के निकोलस केज को अदली बदली कर दिया, वही यही फिल्में देखी हैं हमने सिनेमा में. देयर इज नेवर अ ड्रामेटिक मूवी. तो एक तो चॉइसेस, यू आर लिमिटेड बाय चॉइसेस, ठीक है. पीपल हु लाइक डीसी मार्वल टाइप थिंग्स, दे वांट टू एंजॉय इट देयर. अब देखें, जब से वी हैव, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में ना दो गलत चीज़ें हुई, एक पाकिस्तान में और एक दुनिया में. पाकिस्तान में जो गलत चीज़ हुई है वो है कि बहुत गलत लोगों के पास पैसा आ गया. पहले होता था कि भाई आप ये इंसान हैं, आपने ये तालीम हासिल की या आपने ये स्किल हासिल की, ठीक है, एंड देन यू मेड योर वे अप एंड देन यू गॉट द रिचेस्ट. अब क्या है, आपके मामू ने किसी ज़माने में प्लॉट ले लिया था, अब बैठे बैठे वो करोड़ों का हो गया, आपने बेच दिया, उसमें आपकी कोई स्किल नहीं लगी, जमीन खुद ही अप्रिशिएट हो गई, आपने कोई इस पर मेहनत नहीं की, कुछ किया नहीं, और रातों रात जो है बहुत लोगों के पास बहुत पैसा आ गया. तो अब आप देखते हैं पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा तो बहुत आ गया है, मगर वो क्लासलेस लोगों के पास बहुत आ गया पैसा. आपको देख के, आप टिकटॉक उठा के देखें, हर बंदा V8 में घूम रहा है. V8 सस्ती गाड़ी थोड़ी है. डाला वाला तो बड़ी छोटी चीज़ें हो गई हैं. डाले तो अब पीछे गार्ड्स के पास होती है, आगे वाला जो है वो ज़रा बड़ी और लैंड क्रूज़र और प्राडो एंड दिस एंड दैट उसमें होता है, ठीक है. तो मगर आप देखें, आप ऐसों के साथ बैठना भी नहीं पसंद करेंगे. आप यू कैन टेल कि IQ लेवल दिख ही नहीं रहा उस पूरी टिकटॉक में. बढ़िया, पाकिस्तान में इस तरह के लाखों लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा आ गया. सो ऑब्वियसली व्हेन दे हैवंट वर्क देयर वे अप, तो उनको पता नहीं है अदब आदाब कहाँ के क्या हैं. फिर वो समझते हैं हर चीज़ हमारे बाप की है. फिर इंटाइटलमेंट भी बहुत है. और दूसरी चीज़ जो, ये तो पाकिस्तान में हुआ ना, जो दुनिया में एक जो चीज़ आई है, सिंस जब से किसी और को दिखाने की एबिलिटी आ गई है ना. पहले क्या होता था, आप सिनेमा गए, आप ही गए, आप ही वापस आ गए, और आपने अगले दिन दोस्तों को स्कूल में बता दिया, यार कल मैंने पुलिस स्टोरी 3 देखी बैम्बिनो पे, बड़ा मजा आया, अब्बू लेके गए थे. दैट्स इट. नाउ यू हैव द एबिलिटी टू ब्रॉडकास्ट इट टू मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल. सो लोगों ने अब एक्सपीरियंस इसलिए नहीं करना होता कि दे वॉन्ट टू डू समथिंग, वो इसलिए करना होता है कि हम 4 लोगों को दिखा सकें. हेंस द स्नैपचैट. व्हाई द फक वुड यू गो टू अ मूवी एंड स्नैपचैट इट? क्यों करोगे? मुझे समझ नहीं आता. समझ रहा है मेरी बात? तो जब से ये एबिलिटी आ गई है, तो लोग जो हैं, पीपल आर डूइंग एक्सपीरियंसेस ओनली सो दैट दे कैन शो इट टू अदर पीपल. सिमिलरली, जो अभी एक कमेंट भी शुरू में आया था कि नन ऑफ माय फ्रेंड्स आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू आर्ट म्यूजियम, बिकॉज उनको पता है उनकी ऑडियंस या उनके जो सर्कल है उसमें कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी वहां से उस चीज़ की. हाँ, अगर वो फेरागामो का कोई स्कोर कर लेती हैं, स्कार्फ, जो कि बड़ा रेयर था, उसको जो है ना, उसकी ऑडियंस बहुत है. सो they'll flaunt that. तो एक तो ये बड़ा मसला, सिनेमा में मोबाइल फ़ोन निकाल लेना. अब सिनेमा का जो एटिकेट है वो संभालना है सिनेमा वालों ने, वो काम अब करते नहीं. वो बस सिर्फ कैमरे पे बैठ के देख रहे होते हैं कौन मेक आउट कर रहा है, दैट्स इट. वो सिर्फ यही काम कर रहे होते हैं. उस दिन भी एक ग्रुप पे भी कंप्लेन आई हुई थी अबाउट पीपल वर बीइंग वेरी, एक ने जो है ना पैर यहाँ रख दिया तो उसका मोजे की स्मेल आ रही है, पैर पीछे से हिला रहे हैं, सीट हिला रहे हैं आपकी, या फिर ये कि आपकी बराबर वाली सीट को उसने अपना फुट रेस्ट बना दी, ऑटोमन बना दिया. अब ये आप है, ये उसका 9 नंबर का जूता है. द फक काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस इज दैट. सो और फिर यहाँ पे भी, एंड इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया और पाकिस्तान. अब आप देखते हैं ना, एक पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल थी कि कोई साउथ इंडियन मूवी थी एंड दे वर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ रकस और पूरा पॉपकॉर्न उड़ा रहे हैं, और लाइक उसने फिल्म बंद कर दी थी. सिक्योरिटी वाला सोना, मैं बंद कर रहा हूँ, जाओ घर यहाँ से. वो कह रहे वी पेड फॉर द मूवी, कह रहा है भाई मूवी का पे किया, मूवी देख, ये क्या हरकतें कर रहे हो. तो अब देखो पुलिसिंग यहाँ पे, अगेन वही वाली बात है, पाकिस्तान में कोई इसलिए हाथ नहीं डालता भाई, नहीं पता ना कौन क्या है. वो उसकी ईगो, छोटी वाले लोग होते हैं उनकी ईगो हर्ट होती है, वो सीधा अपने 4 गार्ड ले आते हैं, और फिर अगला भी सोचता है यार खल्ली वल्ली मेरी नौकरी कौन सा मुझे इतना दे रही है, जिसकी मैं सिनेमा के पीछे लड़ूं जो मुझे कुल मिला के 40,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, मैं उसके लिए अपनी जान दूंगा, भाड़ में जाए. तो लोगों के अंदर भी जो है ना वो ज़रा ख़त्म हो गई है, क्योंकि उनको पता है यार इट्स नॉट वर्थ इट, यू नो. तो आई डोंट गो फॉर एनी such experience in Pakistan. It's primarily because people just don't know how to behave.
मैं आपको एक एक्सपीरियंस सीधा सीधा शेयर कर लेता हूँ। मैंने शायद पिछली वीडियो में भी शेयर किया था। वही कि जब मैं एक महंगी जगह गया एक सैंडविच ट्राई करने, तो जब देख रहे हो सामने लगा हुआ है और आपको नहीं समझ आ रहा, ठीक है ना, सैंडविच का नाम है जुनैद अकरम, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या है, तो जब तक आप क्यू में हो आप गूगल पे जाके मेन्यू देख के पूरा कर लो और एंड जस्ट फकिंग डिसाइड, क्योंकि वहां जाके सोचना नहीं है, लेकिन नहीं, वहां जाके सोचना है। अब ये वो लोग हैं who can afford all of this, so clearly उनका सोसाइटी में एक मर्तबा तो है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली, who can afford these things। अगर उनका भी दिमाग इतना नल्ला है तो आप बाकियों का क्या ही होगा। So yeah, just people are just dumb fucks, man. क्या बंदा बोले। So I totally understand your pain, and I still remember one of the finest experience that I had watching a movie was Interstellar। मैं मेरी लंच ब्रेक थी, सॉरी हाफ डे था, तो मैं जो है इंटरस्टेलर देखने गया देरा सिटी सेंटर, एंड आई वाज क्राइंग अलोन बिकॉज दोपहर का शो था, इतना रश नहीं था। या मैन, एंड ऑल्सो आई रियली 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 एंजॉयड बोहेमियन रैप्सोडी। आई वाज इन बार्सिलोना। मैं डर डर के गया सिनेमा, पता नहीं इंग्लिश में होगी कि नहीं, लेकिन वो इंग्लिश में थी। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट, एंड आई फाउंड दैट मूवी very emotional. Same goes for Elvis. I enjoy these movies. I understand their pain. So yeah, अच्छा क्या, हाँ, जोर से बातें करना और फोन करना, अगेन ज्यादा बोलोगे तो फिर जड़ा बोले वही बुआ खोले, ये तो मसला है। जो बोलता है फिर उसी को ही झेलना पड़ता है। बेहतर है आप जाके इंतजामिया को बोला करें कि भाई या तो मेरे पैसे वापस करो या इनको सीधा कराओ, ठीक है, पंगा डाल दिया करो। अब इंतजामिया तो नहीं लड़ेगी ना आपसे उस तरह। सो या, ऑलवेज वॉइस, मे बी नॉट डायरेक्टली बट एटलीस्ट टेल दी अथॉरिटीज़ कि भाई मैंने यहाँ पैसे इसके दिए कि अगला अपना जूता मेरे कंधे पे रख रहा है, अगला ये शोर कर रहा है, अगला स्नैपचैट। somebody had written about कोई हॉरर मूवी थी, and some people were recording every jump scare on Snapchat, like what the fuck man, put your phone away। अब अगर उसमें जैमर भी लगा दें तो लोग तो फिर भी रिकॉर्ड तो करेंगे ना, वो बाद में अपलोड कर लेंगे। दैट डजंट वर्क आइदर। बहुत सारे थिएटर्स में अराउंड द वर्ल्ड देयर इज ऑलवेज वार्निंग्स अबाउट पुट योर फोन अवे, पुट योर फोन अवे। पीपल जस्ट डोंट लिसन मैन, डम फक्स। सो या मैन, आई एम सॉरी फॉर योर एक्सपीरियंस, बट इसमें फिर बेहतर एक हाल यही है कि आप इफ़ योर वर्किंग आवर्स आर फ्लेक्सिबल, मंगल की सुबह चले जाया करो, कोई भी नहीं होता, अकेले अपने हिसाब से देख कर आ जाओ। दैट्स द बेस्ट टाइम। बट आई अंडरस्टैंड लोग वीकेंड का वेट करते हैं, दे गो विद देयर फैमिलीज, दे गो विद देयर स्पाउसेस, ट्राइंग टू एंजॉय अ मूवी, एंड दिस इज व्हाट दे गेट इन रिटर्न। इट्स सैड। हमें ना असल में वी आर नॉट ट्रेन्ड हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू फंक्शन एट इवेंट्स, विच इज़ वाई आप देखते हैं हमारे हर कॉन्सर्ट पे हुल्लड़बाजी होती है। यहाँ क्यों नहीं होती? ये तो कहते हैं ना शराब पी के अंग्रेज पागल हो जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं होती हुल्लड़बाजी शराब पी के? क्यों इतने आराम से लाइन से निकल रहे होते? मैं आई वेंट टू सी लेडी गागा O2 अरीना में, O2 नहीं सॉरी, व्हाट्स दैट टीम, फुटबॉल की टीम है उनका, टॉटनम हॉटस्पर स्टेडियम में, धुत थे शराब से, आराम से निकल रहे हैं लाइन बना के, अपना गा रहे हैं, आपस में गा रहे हैं, एंड दे वर जस्ट लाइक इन स्ट्रेट क्यू। ये पता नहीं कौन से नशों में होते हैं। तो इट्स ओनली तरबियत का ही फुकदान है और कोई नहीं। ये सब बकवास है कि वो शराब पी कैसे हो जाते हैं। हमने सोबर रह के कौन सी सोबर हरकतें कर ली? फजूल की चीज़ें हैं ये। जिसे करना होता है उसको नशे में भी होश होता है, इतना होश ज़रूर होता है कि मैंने बोतल डस्टबिन में फेंकनी, सड़क पे नहीं तोड़नी। समझ रहे हैं? कॉन्सिक्वेंसेस सीधा रखते हैं। बट हमारे यहाँ हर तीसरा बंदा ही कोई कुछ है, कोई किसी का जानने वाला, कोई किसी का। कोई और अचीवमेंट है नहीं ज़िंदगी में सिवाय इस DNA एक्सीडेंट के कि हम उनके यहाँ पैदा हो गए। दैट्स देयर एंटायर अचीवमेंट। सो सॉरी टू हियर दैट मैन, बट क्या कर सकते हैं। बट ये कि सिनेमा को डंडा दें, घर आएँ, चले वहाँ नहीं दे सकते डंडा, घर आएँ, वॉइस इट आउट ऑन इंस्टाग्राम, टैग करें इनको फेसबुक पे, इनको ज़रा जलील करें ताकि इनको भी कोई गैरत है कि 2,500 रुपये के और इतने महंगे महंगे पॉपकॉर्न बेचते हो और बाहर से लाने भी नहीं देते। यू नो व्हाट हैपेंस यहाँ पे यू कैन जस्ट टेक, नहीं मना करते, इट्स परफेक्टली फाइन, एटलीस्ट इन इंग्लैंड मैंने तो यही देखा है। लोग घरों से ला रहे होते हैं, बच्चे अपना बैकपैक बना के जाते हैं, कभी किसी ने नहीं बोला कि नहीं जी ये जूस अंदर नहीं जाएगा।
कहते हैं एंजॉय करने हैं, लेट देम एंजॉय। बट हमारे यहाँ चूंकि लालच ये ना, नहीं सब मेरे से खरीद, सब फेक और सब मेरे से खरीद, चल तेरे से खरीद लिया, दे दे सर्विस, सर्विस भी नहीं देनी। इफ ओनली पीपल रियलाइज कि हाउ मच वैल्यू यू गेट फॉर अ डॉलर एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड एज अपोज टू इन प्लेस लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे आप हर चीज़ महंगी खरीदते भी हो और वो अगला आपको जलील करके बेचता है। इफ ओनली यू गेट टू एक्सपीरियंस लॉर्ड्स में आप पूरा बस्ता भर के जाओ ड्रिंक्स का और पॉपकॉर्न का, मजाल है वो रोक के देखा है, कभी भी नहीं रोकेगा। आप घर से पॉपकॉर्न बनाओ और सिनेमा ले जाओ, कभी भी नहीं रोकेंगे यहाँ पे। उनका आइडिया कि यार आप इंजॉय करना है इंजॉय करो, हमने जो कमाना था कमा लिया टिकट से, ठीक है। आप ड्रिंक्स तो फिर वहीं से लोगे ना। आई डोंट नो मैन, खैर सॉरी टू हियर अबाउट दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।